सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM क्रैक प्रीलिम सीरीज़ में. आज का जो क्वेश्चंस हैं, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. The question is, the James Webb Space Telescope, NASA's most powerful telescope, is scheduled to be rocketed into orbit no earlier than December 22. Consider the following statement about James Webb Space Telescope. Statement 1 is, it will observe primarily in the infrared range and provide coverage from 0.6 to 28 microns. It orbits around the Earth at an altitude of 570 kilometers. Webb will have a larger field of view compared to the camera on the Hubble. यहाँ पे you have to tell the correct answer. So, James Webb Space Telescope carrying 4 scientific instruments will observe primarily in infrared range. तो ये आपको ध्यान में रखना है. इट विल ऑब्जर्व इन इंफ्रारेड रेंज पे इट विल ऑब्जर्व एंड प्रोवाइड कवरेज फ्रॉम 0.6 टू 28 माइक्रोन्स. द इंस्ट्रूमेंट्स ऑन हबल सी मेनली इन द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम. So this is also the difference, ultraviolet and visible part of the spectrum. It could observe only a small range in the infrared from 0.8 से लेके 0.8 to 2.5 माइक्रोन तक आपका it can observe when you talk about James Webb Space Telescope. Hubble orbits around the Earth at an altitude of 570 kilometer. Webb will not orbit the Earth. It will not orbit the Earth. It will orbit the Sun at about 1.5 million kilometers away from the Earth. तो ये दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है. एज द अर्थ ऑर्बिट द सन, वेब विल ऑर्बिट विद इट, बट इट विल स्टे फिक्स्ड इन द सेम स्पॉट with relation to the earth and sun. तो यहाँ पे वेब will have a larger field of view compared to the camera on the Hubble. इसका better view रहेगा. This statement is wrong. ये आप statement भी आपका सही है. The answer is 1 and 3. So this session is presented by me. My name is Saurabh Pandey. So Indian Express का ये आपका है. नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act. It is fully owned subsidiary of the Reserve Bank of India. It ensures that account holders can access their insured deposit account within 9 days of such a liability arising in the event of bank coming under the moratorium imposed by the Reserve Bank of India. If a bank is weak or is even about to go bankrupt, a depositor will get their money of अप टू ₹8 lakhs. यहाँ पे आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सो इसका सोर्स भी आप देख सकते हो, बिजनेस लाइन का ये आपका टॉपिक है. सो लेट्स सी अबाउट दिस टॉपिक. सो व्हेन यू टॉक अबाउट इफ अ बैंक इज वीक और इज इवन अबाउट टू गो बैंकरप्ट, डिपॉजिटर विल गेट देयर मनी अप टू ₹5 lakh. यहाँ पे क्या लिखा है कि मान लो लाइक इट्स अ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट. तो यहाँ पे जैसे बैंक बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, अब इसमें जो इंश्योरेंस है डिपॉजिटर्स के लिए, इट इज़ अप टू 5 lakh. अपने मनी के लिए जो इंश्योरेंस है दैट इज़ ऑफ 5 lakh. इट इज़ नॉट ऑफ 8 lakh. इट इंश्योर्स दैट अकाउंट होल्डर्स कैन एक्सेस देयर इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट विद इन 90 days of such a liability arising in the event of a bank coming under the moratorium imposed by the Reserve Bank of India. तो यहाँ पे 9 days लिखा है. इट्स नॉट 9 days, इट्स 90 days. सो यहाँ पे कि अकाउंट होल्डर जो है ही कैन एक्सेस देयर इंश्योर्ड, जो अपना इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट है विद इन 90 days जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. सच अ लाइबिलिटी अराइजिंग इन द इवेंट ऑफ अ बैंक कमिंग अंडर द मोरेटोरियम जो इम्पोज किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. तो इफ़ यू सी दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. इट इज़ फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. व्हेन यू टॉक about this act, so deposit insurance and credit guarantee corporations, if you talk about these corporation, so it is a fully owned subsidiary रहेगा within the Reserve Bank of India. तो this statement is right. Answer is 1 only. Next देखते हैं, consider the following statement about tornado क्योंकि US में आया था, अभी ये आप देख भी सकते हो, was US tornado outbreak related to climate change. So you can see this, tornadoes are whirling vertical air column that form from thunderstorm and stretch to the ground. Thunderstorm occur when denser, drier, cold air is pushed over warmer, humid air. Condition scientists call atmospheric instability. For
स्पेशली स्ट्रॉन्ग टॉर्नेडोज चेंज आर नीडेड इन बोथ द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो दे ट्रैवल विथ फेरोशियस स्पीड एंड ले वेस्ट to everything in their path. Thunderstorms when occur, we can say occur when denser, drier, cold air is pushed to our warmer, humid air. तो यहाँ पे अगर if you talk about, तो यहाँ पे आप सोर्स भी देख सकते हो, आया भी था पेपर के अंदर। तो थंडर स्टॉर्म ऑकर होते हैं when denser, drier, cold air, denser, drier, cold air is pushed over the warmer, humid conditions. And as per the scientist, they call it as atmospheric instability as well. Atmospheric instability. As that happens, an updraft is created when the warm air rises. तो warm air आपकी rise करेगी, ठीक है, cold air के ऊपर warm air जो है वो rise करेगी, and ये आपका it will result into what we call it as updraft when the warm air rises. When winds vary in speed or direction at different altitude, the condition known as wind shear, ये आपको ध्यान में रखना है, it is known as wind shear. तो यहाँ पे क्या है कि ये जो विंड है इट्स स्पीड विल ऑल्सो वेरी, उसकी स्पीड वेरी करेगी, डायरेक्शन विल ऑल्सो वेरी डिफरेंट एल्टीट्यूड पे, एंड वी कॉल दिस एज अ विंड शेयर. द अप ड्राफ्ट विल स्टार्ट टू स्पिन. तो ये जो ऐसा वार्म एयर ऊपर जा रहा है, अप ड्राफ्ट, विंड विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड इन डिफरेंट स्पीड, एंड ये जो अप ड्राफ्ट है इट विल क्रिएट अ वर्लिंग काइंड ऑफ थिंग. तो इसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्नेडोज कहते हैं. दीज चेंजेस इन विंड प्रोड्यूस द स्पिन नेसेसरी फॉर अ टॉर्नेडो. तो ये जो बदलाव होता है विंड शेयर है अप ड्राफ्ट का, तो इट रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पिन नेसेसरी फॉर टॉर्नेडो. फॉर स्पेशली स्ट्रॉन्ग टॉर्नेडो चेंजेस आर नीडेड इन बोथ द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन. तो फॉर द क्रिएशन ऑफ द टॉर्नेडो ये जरूरी है कि स्पीड भी बदले और जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस, दोनों चीज़ों में बदलाव हो. तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं. नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यू कैलेडोनिया. कैलेडोनिया तो ये आप देख सकते हो न्यूयॉर्क टाइम्स का है. अ टाइनी स्कैटरिंग ऑफ आइलैंड इन द साउथ अटलांटिक. न्यू कैलेडोनिया इज द ओनली प्लेस इन मेलानेशिया, एन आर्क ऑफ आइलैंड दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम पपिया न्यू गिनिया टू फिजी दैट रिमेन अंडर कॉलोनियल कंट्रोल. इट होस्ट अ चाइनास मिलिट्री बेस. यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है. तो यहाँ पे if you talk about this, तो a tiny scattering island in the South Pacific, it's like written Atlantic, it's South Pacific में ये located है आपका. उसके बाद it hosts a French military base, it's not a Chinese military base, ये French military base है. और ये statement this is correct. In a referendum held recently, voter rejected independence overwhelmingly with 97% electing to stay part of France, according to the final results released by the French High Commission in New Caledonia. तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो यहाँ पे फ्रॉम पापुआ न्यू गिनिया टू फिजी इसका ये एरिया है. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. आंसर जो है दैट इज ए. नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हींग. हींग या फिर असा फोर्टिडा या हींग, ये भी न्यूज़ में आप देख सकते हो डाउन टू अर्थ से है. इट इज़ अ पेरेनियल प्लांट हुज oleogum resin is extracted from its thick stem and rhizome. It is endemic to South America. Hing seeds remains under a prolonged dormant phase and rate of seed germination is just 1%. यहाँ पे आपको जो है करेक्ट बताना है. सो यहाँ पे देखो, it is a perennial plant whose oleogum resin is extracted from its thick roots and rhizome. It's not like ये स्टेम से नहीं निकाला जाता है. ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है इट इज़ नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेम्स, ये रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो ये ध्यान में रखते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है. दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ इट इज़ एंडेमिक टू ईरान, इट्स नॉट साउथ अमेरिका, ईरान एंड अफगानिस्तान इसके लिए एंडेमिक है. तो ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट आपका सही है. सो आंसर इज दैट इज़ 3 ओनली. नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. द समिट ऑफ फॉर डेमोक्रेसी वॉज अ वर्चुअल समिट होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट टू रिन्यू डेमोक्रेसी एट होम एंड कन्फर्म ऑटोक्रेसी अब्रॉड ऑन December 9-10, 2021. द 3 themes आर डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, एड्रेसिंग एंड फाइटिंग पैंडमिक्स, एडवांसिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. यहाँ पे आपको करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट बताना था. यहाँ भी अगर आप देखोगे इंडिया टुडे में आया भी था. यहाँ पे अगर देखा जाए द 3 themes आर, इसकी थीम्स जो है कौन सी हैं, यहाँ पे एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना. इट्स नॉट लाइक, क्योंकि ये जो लाइन लिखी हुई है कि एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन, इट्स नॉट पैंडेमिक, इट्स करप्शन.
ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यूएसए के द्वारा ये की गई थी, इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया था बट पाकिस्तान नहीं आया, चाइना को इन्वाइट नहीं किया गया। डिफेंडिंग अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, एडवांसिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, तो ये स्टेटमेंट चाहिए। दिस इज एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी 1 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement about radioactive pollution in water. Radioactivity is the phenomena, a spontaneous emission of particle or waves from the unstable nuclei of some elements. In anthropogenic source of radioactive pollution, nuclear weapon investigation, nuclear calamities, nuclear powerhouses, dumping of radioactive waste are the major source of contamination. Percolation of naturally occurring radioactive material, norms from the soil sediments to the aquifer causes groundwater contamination. So यहाँ पे भी डाउन टू अर्थ का ही कुछ टॉपिक है. So let's see. यहाँ पे देखो, when you talk about the radioactivity basically it's a phenomena of spontaneous emission of particle or waves from the unstable nuclei of some elements. तो कोई भी unstable nuclei है उससे emission of particles है ना, emission of particles, we can say emission of particles or waves. तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उससे ये जो एमिट होता है तो इट विल बी अ रेडियो एक्टिव, कोई भी जैसे यूरेनियम है तो इट विल हैव द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, पार्टिकल्स और वेव्स का एमिशन देखने को मिलेगा. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशन. जो रेडियो एक्टिव एमिशन है इट कैन बी अल्फा, इट कैन बी बीटा एंड इट कैन बी गामा. 3 तरीके के एमिशंस आपके होते हैं. अल्फा पार्टिकल्स जो हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम्स, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड गामा रेज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इन एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, न्यूक्लियर वेपन कैलमिटीज, nuclear powerhouses and dumping of radioactive waste are the major source of contamination. They are the major source of contamination, while application of radioisotopes in industries and scientific laboratories are the minor sources. ये point आपको ध्यान में रखना है कि these are the major sources, but when you talk about if you talk about radioisotopes in industry or scientific laboratories में ये क्या है, they are the minor sources. They are the minor sources. Radioactive contamination is more prevalent in groundwater as compared to the surface water, since it is much exposed to radioactive element found in the rocks. Sometimes magma also release radioactive gases into the environment. Radioactivity is measured in becquerel SI unit है, और in Curie energy absorbed per unit mass is measured by Gray, while the unit sievert 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 measures the quantity of radiation absorbed by human tissues. ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना. तो यहाँ पे जो percolation of naturally occurring radioactive material from the soil sediment to the aquifer causes ground contamination. तो ये कॉमन सा पॉइंट है. जो भी मटेरियल प्रेजेंट है तो इट कैन कॉज रेडियो एक्टिव और वी कैन से इट कैन पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर एज वेल. तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं. सो अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें. अनअकैडमी अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो जरूर से ज्वाइन करें. यूज़ द कोड SPLIVE. आप मुझसे जुड़ सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और साथ में आपकी क्लासेस भी चल रही हैं. 11 बजे आज एनवायरनमेंट की क्लास है अनअकैडमी के अंदर, फ्री क्लास है. द क्लास विल बी प्रेजेंटेड बाय मी. तो उसको आप कर सकते हैं. कोड यूज़ करना SPLIVE. तो अभी जो प्राइस भी आपका हाइक हो रहा है तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं SPLIVE, और आप ज्वाइन कर सकते हैं. इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं. तो ये कॉम्प्रहेंसिव पैकेज होता है. एक बार अगर आप 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए जुड़ते हैं तो आप सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज़. फ्री टेस्ट सीरीज़ भी आपकी अवेलेबल है. आप अनअकैडमी कॉम्बैट का हिस्सा बन सकते हैं, T20 डेली करंट अफेयर्स का हिस्सा बन सकते हैं, अभियान का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें डेली स्टैटिक क्विजेस आपकी रहती हैं. जो मेगा कॉम्बैक्ट है आप उसका हिस्सा बन सकते हैं जिसपे आपके पास मौका है ये सब जीतने का. iPad, HP लैपटॉप ये सब जीत सकते हैं आप. कोड यूज़ करना है दैट इज़ SPLIVE. इस कोड का इस्तेमाल करके आप जुड़ सकते हैं. ऑप्शनल के लिए भी जुड़ सकते हैं आप. एग्रीकल्चर ऑप्शनल मुझसे जुड़ सकते हैं. आप ज्वाइन करेंगे तो आप जो बैच 2 की क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस और एडवांस कोर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं. नया बैच जब स्टार्ट होगा तो आई विल लेट यू नो. यूज़ द कोड SPLIVE. एग्रीकल्चर ऑप्शनल, हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी रास्ता आपके लिए ओपन हो जाता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. जितने भी बैच कोर्सेस हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रिकेट.